Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Be ready with your copies today. I'll be giving you some work and I expect you to submit the assignment. I'll be showing you an activity which is based on some theory that you have done. And you have to analyze it and do that activity. Nitin.
Okay. The first topic that we did was self-exploration. Can anybody tell me what is the process of self-exploration? Do you remember? Self-exploration का process क्या होता है? And what do you need to do for that? What do you need to do self-exploration? Ma'am, self-exploration is the process by which we get to know that what we are and what we want to be. Right, very good. And so it tells you what you are and what you really want to be. It helps in the correct identification of your aspirations. It tells you how you can fulfill your aspirations. And it also tells you what is the connection between values and skills. It also teaches you right use of technology. ठीक है, तो जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. हाँ, लेकिन मेन पर्पस है इट हेल्प्स यू टू एनालाइज योरसेल्फ. नाउ डू यू रिमेंबर द प्रोसेस? Jatin Sharma, your roll number is not complete. I have admitted you, but your roll number is still incomplete. Jatin Sharma. Otherwise, I'll have to remove you from the class. Okay, what is exactly the process? If you remember the diagram, anybody? If Yes, you remember ma'am, the diagram, what is the process? Swatva, Swatantrata and Swarajya. That is okay. That is analyzing the self, moving, becoming more self-organized, and then trying to practice that organization, self-organization in your daily behavior. मैम द प्रोसेस मैम जो प्रोसेस होता है उसमें मैम ये बताया गया था कि जो भी चीज हमसे कही जाती है वो एक प्रपोजल होता है जिसे Right. हमें हमेशा सही नहीं मानना है. हमें मैम उसको इमीडिएटली उसको सही नहीं मानना है. हमें उसे अपने ओन राइट पर समझना है कि वो सही है या गलत है. और ये नहीं कि हमने उसको कहीं पढ़ा हुआ देख लिया या किसी डेटा या किसी इक्विपमेंट के बेसिस पर हम उसको एक्सेप्ट कर लें या फिर किसी ने हमसे कह दिया कि इसको एक्सेप्ट कर लो तो हम उसको ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे. हम उससे अपने ओन राइट पर एक्सेप्ट करेंगे कि वो हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, जिससे हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगी और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी भी आएगी. Right, Pranav. तो हम हमेशा whenever we are doing the process of self-exploration, we have to take the help of natural acceptance and experiential validation. दो चीजें हैं. अब मैं आपको एक activity show कर रही हूँ, which is there in your syllabus. You will read the activity. I'll explain it to you what you have to do. Then you have to put it down on a sheet of paper and you submit it to me on my WhatsApp. I will evaluate it in my own way. Abhi karoge during the class. I'll give you some time. I'll just keep writing down your name. हाँ नफीस बोलो. Yes. मैम क्या करना है? अभी बता रही हूँ ना, आप ध्यान दो what I'm saying. I'll be showing you an activity based on this process of self-exploration. You just have to read the activity very carefully and you have to write down the answer to this. उसमें कुछ questions हैं, आपको उसके आंसर लिखने हैं and then you will be submitting it to me on WhatsApp. Be giving you a feedback. ठीक है? So the activity is here. Just look at PS1 activity. Introduce yourself in detail. What are your goals in your life? How do you set your goals in your life? How do you differentiate between right and wrong? What have been your salient achievements and shortcomings? Observe and analyze them. आपको दिख रहा है? All of you can see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
There are lots of questions here which you can see. आप एक एक करके इन सारे questions के आंसर करिए with the help of the process of self exploration. है ना, it tells you what you are and what you really want to be. It helps in correctly identifying your aspirations. तो अपने एस्पिरेशंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं. आप राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस कैसे बताते हैं, आपने क्या अचीव किया है लाइफ में, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, सब सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही हमको पता लगती है. तो टेक योर टाइम, डू दीज क्वेश्चंस एंड देन यू सबमिट देम. इन बिटवीन आपके कोई क्वेरीज हैं, आई एम लिसनिंग टू यू, यू कैन आस्क मी. प्लीज डू दिस. Excuse me, ma'am. यस. मैम वैल्यू एजुकेशन में गाइडलाइंस थी, उसमें सेकंड पॉइंट था रैशनल. हाँ. मैम एक बार आप वो दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे? Okay. Do you want me to share the slide again or just like that? मैम जस्ट See, एक्सप्लेन. rational means something which is logically acceptable to all the people. We can reason it out. In case somebody says that this is wrong or right, we can reason it out. That particular thing is rational. जिस चीज को हम reason out नहीं कर सकते हैं, जो चीज बहुत ही practical नहीं है, that is not I should say that is not a value. So value Ma'am? education, yes. मैम इसमें एक लाइन है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास और ब्लाइंड बिलीव्स. मैम Okay. किसी ब्लाइंड बिलीफ की वजह से कैसे कोई वैल्यू एजुकेशन इफेक्ट हो सकती है? See, if there are blind beliefs, there are people who, they just accept what is being said without even reasoning it out. That is something which is not right. As per self exploration also, I have told you that whenever there is a proposal, ये dogmas और beliefs भी kind of proposals ही हैं. तो जब भी कोई प्रपोजल होता है तो हमें उसे ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करना है, हमको उसको रीजन आउट करना है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड आवर एक्सपीरियंस. तो रैशनल वही चीज होगी जिसको आप रीजन आउट कर पाएंगे. तो वैल्यू एजुकेशन हमेशा रैशनल इन नेचर होती है, ये उसका एक गाइडलाइन है दैट इट इज रैशनल. ठीक है, तो जो मैम आप भी एक एग्जांपल दोगे? See, suppose there is a belief that that this particular aspect in the society is not acceptable हमारे लिए, not for us. कोई भी एक एस्पेक्ट ले लो, कोई भी मतलब एक रिलीजन रिलेटेड हो या किसी पर्टिकुलर कास्ट या कलर क्रीड के रिलेटेड हो, कि ये क्लास ऑफ पीपल दे आर वेरी रिजिड या दे आर वेरी यू कैन से वेरी सुपरस्टिशियस, कुछ भी इस तरह की एक थिंकिंग हो. अब मान लो हमारे सामने इस तरह का कोई प्रपोजल आता है that people are superstitious, these people, this class of people are very superstitious. तो ये नहीं हो सकता कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की बिलीफ है. तो नफीस नैतिक, पहले माइक ऑफ कर लो, when your turn comes then you can switch it on. ठीक है. सो जब हमें किसी ने हमसे कह दिया या हमने सुन लिया या कहीं पढ़ लिया and we believe this particular thing, it is not right. आप रीजन आउट करो लॉजिकली कि ये क्या ठीक बात है कि हम इस तरह के कोई भी एक क्लास कैटेगरी ऑफ पीपल हम कहते हैं ये तो सारे सुपरस्टिशियस हैं. वी कैन नॉट डू इट. वी हैव टू रीजन आउट एवरीथिंग दैट कम्स बिफोर अस, एनी प्रपोजल दैट कम्स बिफोर अस. और वैल्यू एजुकेशन ये चीज सिखाती है, इसकी ये गाइडलाइन है दैट इट इज रैशनल इन नेचर. ओके, थैंक यू मैम. Any other query? Anything else? अभी हम क्योंकि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन डिटेल, तुम क्या इंट्रोड्यूस करना है? आप अपने बारे में बताइए. नॉट योर नेम एंड प्लेस टू विच यू बिलोंग. प्लीज टेल एवरीथिंग एल्स अबाउट यू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन डिटेल लिखा है ना, तो डिटेल मतलब आप कंप्लीट अपने बारे में बताइए. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. एनालाइज योरसेल्फ.
please do it properly. These are your activities. I will be marking you for these activities और practical purpose से ये बाद में मेरे काम आएंगे internal marking में. So we'll keep doing the activities. They are all based on the theory that you have done. I'm here. You can keep asking me questions. I'll answer. Okay, there's one more thing that I would like to share over here. There are many students from your class जो कि regularly classes को attend नहीं कर रहे हैं. Now they will suffer if they are not doing these activities with me, because I'll be covering these activities and marking you also for it, and I will use it later on for my own purpose, for marking you for practicals. तो अगर कोई नहीं करेगा तो उसका लॉस है, और मैंने बताया आप ये करके मुझे सबमिट भी करोगे इसका पिक्चर. As many questions, whatever you do, keep doing them with me, and those who don't do it, I will not be able to help them in any way. So tell your friends also that we are doing activities in the human values classes, and these activities will be marked, so everybody has to do them with me, and they are based on the theory that we have covered till now. मैम एक्टिविटी आज ही आपको मतलब सबमिट करवानी है क्या? कह तो रही हूँ, अभी मैं वेट कर रही हूँ. आप लिखो इसको, मुझे सबमिट करो. जितने क्वेश्चंस अभी हो जाते हैं, जो नहीं होता है पार्ट. मैम एक्चुअली अभी पॉसिबल नहीं, मैं बाहर हूँ. टाइम देना पड़ेगा मैम. 5 मिनट में 2-3 मिनट में करके सबमिट आपको कर देते हैं व्हाट्सएप पे. 2-3 मिनट में नहीं, आप इसको अच्छे से करेंगे. ये नहीं कि आप बस 2 लाइन लिखी और कर दिया. दीज आर एक्टिविटीज जिसमें बहुत आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन से करना है मुझे. डू इट प्रॉपर्ली. मैम ये जो PS1 है वो करना है क्या मैम? बिल्कुल. अभी मैं कितनी बार मैं पढ़ के चुकी, इसको मैंने रीड आउट करे सारे क्वेश्चंस. मेरी क्लास लेट से ज्वाइन हुई थी मैम, तो मैं क्लास मिस कर तो अब चुका आप हूं. करो. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखो PS1 में. प्लीज डू ऑल दीज one by one, very neatly. Write down PS1 and then write down all the answers. Take a picture and you can submit on WhatsApp. Okay ma'am. I'll be evaluating you for it.
I hope everybody is able. Keep asking me questions if you want to. I hope everybody is doing. And when you finish, you can submit to me. I'll just give you a feedback also. Sometimes we'll do these activities. At times I might give you some questions from the chapters. कल मैंने इसीलिए आपको सिलेबस फिर से एक बार दिखाया था कि ये सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. आप पूरे सिलेबस को रिवाइज करते रहो. Sometimes I might give activities, sometimes I might give questions based on the chapters. Again, मीत मेहता, your roll number is not there. हर बार की बात है, रोल नंबर के बिना आप एंटर होते हो. मीत मेहता. यस मैम. बेटा रोल नंबर आपको नहीं पता है अपना? मैम पता था पर वो चेंज करना भूल गया. आप उस अपने नाम के आगे एटलीस्ट रोल नंबर डालिए. मैं बता देती हूँ रोल नंबर तुम्हारा. I'll just tell you the roll number. और आप लिस्ट देखो जो कुलदीप सर ने भेजी थी, उस लिस्ट में भी आपको आपके रोल नंबर्स जो हैं वो मिलेंगे. नॉर्मल आपका वैसे तो 100 है. You're entering very late also. Do these questions.
Are मैम you able व्हाट्सएप to कर answer? हाँ बोलो। मैम व्हाट्सएप कर दिया आपको। हाँ मैं चेक करती हूँ। Nafis, you should concentrate more on telling about yourself. बाकी तुमने सेकेंड पैराग्राफ में ठीक लिखा है। That's okay. And please put the question numbers also ना। अलग अलग questions हैं तो आप इनको एक मैम साथ। PS1 लिख दिया ऊपर में मैम। हाँ बोलो बोलो। PS1 लिख दिया ऊपर में मैंने। नहीं PS1 ठीक है, but one by one at least put down the questions also so that clarity रहे कि कौन सा goals वाला है ना। नहीं एक्चुअली अभी आपने जल्दी में बोला ना तो नहीं हो पाया। उसको अलग अलग करते हैं, वैसे मैं बता रही हूँ आपको। उसको हर एक अलग अलग पैराग्राफ में एक क्वेश्चन को डील करो। आंसर्स आर गुड। Yes, what about others? मैम Yes, ललित बोलो। मैम थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये हमें मोटिवेशन लिखना है या फिर हमें प्रोसीजर बताना है कि हम क्या ट्राई कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। हाँ आप ये बताओ कि आप अपनी लाइफ में मान लो कोई गोल सेट करना है, देन हाउ डू यू डू इट। सपोज आप देखो Okay. मैंने बताया कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्पिरेशंस करता है। तो कैसे करता है, आप करेक्टली कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेरे लिए ये गोल है, ये ठीक है, ये गलत है। गलत तो खैर बाद में बताना ही है आपको, राइट एंड रॉन्ग तो वो एक अलग चीज है। हाँ ये मेरा गोल है, इसको आप कैसे सेट करते हो? क्या दूसरे कहते हैं आप उसके हिसाब से सेट करते हो? कैसे सेट करते हो किसी भी गोल को अपने? बस ये बताना है आपको। तो मैम इसमें मोटिवेशन भी लिखना है। हाँ किसी से आप मोटिवेट होके सेट करते हो तो आप ऐसे बता दो। कई बार हम दूसरे को देखते हैं, बट अगेन अपना अपना खुद का उसमें कुछ जरूर होना चाहिए कि हमने देखा जरूर, बट फाइनली हमने कैसे डिसाइड किया कि दिस शुड बी माय गोल इन लाइफ। है ना, तो इसीलिए मैं अभी नफीस को भी यही कह रही थी, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग डील करो, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अभी क्या है, मिक्स लग रहा है। सो वन बाय वन प्लीज ट्राई टू आंसर वन क्वेश्चन एट अ टाइम।
Any queries, students? I hope everybody is doing it. Don't write very lengthy, क्योंकि इस पे पढ़ने में भी दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा lengthy लिखोगे तो. But just convey the things in your own manner, in a proper way, clearly, very clearly. मैम ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था एग्जाम में? ये activities, Yes, ma'am. see activities as such तो लैब के काफी मार्क्स हैं इस बार. देखो मैं मार्किंग करूंगी, अभी एग्जाम में नहीं आती, ये मेन थियरी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्टिविटीज हैं आपकी बेस्ड ऑन द थियरी दैट यू हैव कवर्ड. मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया, उसमें देखेंगे कैसे कैसे मार्किंग करेंगे आपकी. ओके ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ. बड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया तो I'll just check. ठीक है, I'll go through it. I'm reading it. Everybody has, दो ही पढ़े हैं खैर अभी मैंने, but attempt is good. थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करके कोशिश करो कि एक एक हम क्वेश्चन को बिल्कुल सेपरेटली डील करें, रनिंग में नहीं लिखें. जैसे आपने लिखा मोइनुद्दीन, आपने लिखा इसमें कि मैं ये एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ, वो एग्जाम क्लियर करना चाहता हूँ. तो किस चीज से आप इंस्पायर हुए इसको करने के लिए? इंस्पायर तो मैं मतलब चाइल्डहुड ड्रीम है. हाँ तो लेकिन किसी को जरूर देखा होगा आपने, कोई तो ऐसा पर्सन है या कहीं आपने सुना या कुछ, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. व्हाट इंस्पायर्ड यू? हाउ डू यू सेट योर गोल्स? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू सेट योर गोल? आल्सो यू कैन मेंशन. आपका चाइल्डहुड ड्रीम था एंड यू आल्सो एनालाइज्ड समथिंग, वो अब आपको देखना है वो समथिंग क्या है. So let me take your attendance. I think everybody must have taken down these questions. Okay, by the time keep doing and submitting. Nupur, are you there? Nupur? Yes, ma'am. बेटा एक तो आप अपना इसमें रोल नंबर आप मेंशन करोगे, है ना? मैं तुम्हें तुम्हारा रोल नंबर बताती हूँ. आपको इस फॉर्मेट में बस उसको फिट करना है जो लिखा है ना 20 EARCS. मीत आप भी इसको चेंज करोगे 20 EARCS
और मैं बता देती हूँ, बाकी आप एक बार कुलदीप सर वाली लिस्ट में से भी चेक करेंगे। नूपुर 119 है तुम्हारा, है ना? तो 20 ERCS 119 ऐसे डालोगे। ऐसे मीत मेहता नाम लिख के 20 ERCS और फिर आप इसको डालोगे। यस मैम। Okay, so please everybody, you have the assignments with you. Keep doing them. Ma'am, Keep doing this assignment and submitting it. Yes, Lavina, bolo. ma'am, please Huh? send the notes of harmony with family